وزیر خارجہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے، اہم خبر دیں گے آپ کو. رشی سونک کنزرویٹو پارٹی کے بلا مقابلہ نئے سربراہ منتخب ہو گئے ہیں. رشی سونک پہلے برٹش ایشین وزیر اعظم ہوں گے. پینی مارڈنٹ سربراہی کے دوڑ میں شامل ہونے کے لیے 100 MPs کی حمایت حاصل نہیں کر سکے ہیں اور رشی سونک کنزرویٹو پارٹی کے بلا مقابلہ نئے سربراہ منتخب ہوئے ہیں. رشی سونک پہلے برٹش ایشین وزیر اعظم ہوں گے. اور آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ رشی سونک کنزرویٹو پارٹی کے بلا مقابلہ نئے سربراہ منتخب ہو گئے ہیں. وہ پہلے برٹش ایشین وزیر اعظم ہوں گے. ان کے مد مقابل پینی مارڈنٹ تھیں جو کہ سربراہی کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے 100 MPs کی حمایت حاصل نہیں کر سکیں اور اس طرح اب رشی سونک ایک مضبوط امیدوار ہیں، نئے سربراہ منتخب ہوئے ہیں اور وہ پہلے برٹش ایشین وزیر اعظم ہوں گے. اور دیکھتے ہیں کہ وہ کب جو ہے وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہیں. بورس جانسن نے پہلے ہی لیڈرشپ ریس سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا اور اس طرح رشی سونک کنزرویٹو پارٹی کے بلا مقابلہ سربراہ منتخب ہو گئے ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور شازیہ مریض اظہار خیال کر رہی ہیں. میں ان تینوں اراکین کو سر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. جو دو ہمارے قابل احترام کولیگز یہاں پر ملیر اور ملتان سے آئے ہیں، جو انہوں نے بیان کیا، یقیناً وہ ایک جہاد کی کیفیت میں تھے اور جھوٹ کا مقابلہ کر رہے تھے. وہ جھوٹ جس نے ہمارے معاشرے میں صرف بربادی پھیلائی ہے، وہ جھوٹ جس نے ہماری جو پولیٹیکل سوشل ویلیوز ہیں ان کو نیست و نابود کیا ہے، اور وہ جھوٹ جو ختم نہیں ہوا تو پاکستان کے معاشرے سے یہ گندگی ختم نہیں ہوگی. لہٰذا ان کی کامیابی نہ صرف سیاسی فرنٹ پہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے بلکہ معاشرتی فرنٹ پہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. کیونکہ آج جس طریقے سے بدتمیزی کو سیلیبریٹ کرنے کی ایک روایت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے وہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے تباہ کن ہے. آپ بھی ایک والد ہیں، میں بھی اولاد والی ہوں، ہمارے یہاں کئی لوگ اولاد والے ہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان کے معاشرے میں اس طرح طوفان بدتمیزی، بد اخلاقی پھیلے. کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی اپنے سے بڑے یا اپنے ساتھی کو ابے اور اوئے کہہ کر اور اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی بات کرے. یہ بدتمیزی ہے، یہ سیاست نہیں ہے. میرے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں اپنے مخالف کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح پیش آنا ہے، یہ مجھے میری فیملی نے اور میری جماعت نے سکھایا ہے. اگر کوئی جماعت بدتمیزی کی بات سکھاتی ہے تو وہ سیاست نہیں، صرف بدتمیزی ہے. میں اپنے کولیگز کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتی ہوں اور اس موقع پر میں اپنی تمام جو پاکستانی ہندو برادری ہے اس کو دیوالی کی مبارکباد دینا چاہوں گی. اس معاشرے کے اندر جہاں ہمیں نفرتوں کو ختم کرنا ہے وہاں ہمیں مذہبی جو ہم آہنگی ہے اس کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک مضبوط اور ایک مستحکم معاشرے میں ترقی کر سکیں. بہت شکریہ سر. شازیہ ہماری قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہی تھی. آگے بڑھیں گے. ملٹی نیشنل فارما کمپنی نے پیناڈول اور کھانسی بخار کے ادویات بند کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، جس کے بعد مختلف فارما کمپنیز نے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے. دوائیں مہنگی ہونے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے. تو یہ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. پیناڈول دستیاب بھی نہیں ہے اور میڈیکل سٹورز مالکان بھی اس حوالے سے مشکلات کا شکار ہیں. مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے عبید شاہ سے. جی عبید. جی، پیراسیٹامول پیناڈول بنانے والی دوا ساز کمپنی نے پیراسیٹامول اور پیناڈول کی جو پروڈکشن ہے وہ روک دی ہے. اس حوالے سے ہم جانتے ہیں ایک میڈیکل اسٹور پہ ہم موجود ہیں، ان کے آنر سے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت کیا صورت ہے. جی سر بتائیے گا. تقریباً 150 سے 200 کسٹمر آتا ہے، ریٹرن جاتا ہے پیناڈول کا ہی. صرف پیناڈول میں، پیراسیٹامول میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. فیبرول آتا ہے، کالپول آتا ہے، ڈسپرول آتا ہے، وہ سب بھی شارٹ کر دیا ہے. اس کے علاوہ پیناڈول تو کمپنی نے بنانا ہی بند کر دی ہے. جو آ رہی تھی پہلے
पहले कंपनी 2 डब्बे 3 डब्बे दे रही थी, अब वो भी नहीं दे रही। वो जब दे रही थी तो 100 का एक स्ट्रिप बिक रहा था, अब तो वो भी नहीं आ रहा। सब जगह से बंद हो गए। और इसके अलावा जो मलेरिया की टोटल दवाई थी वो सब भी शॉर्ट हो चुकी हैं बुरी तरीके से। जी, मल्टीनेशनल कंपनी की जानिब से जो पैनाडोल पैरासिटामोल बनाने वाली मारूफ कंपनी है उसने अपनी प्रोडक्शन रोक दी, लेकिन यहाँ पर जो केमिस्ट हजरात हैं उनका ये कहना है कि जो दीगर कंपनी हैं वो इसी फार्मूले के तहत अद्वियात बना रही हैं। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 100-150 अफराद मलेरिया बुखार के शिकार अफराद यहाँ पर आते हैं, लेकिन अद्वियात न होने की वजह से यहाँ से वो मायूस लौट जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अद्वियात महंगी करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे, अवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं कि पाकिस्तान ने पोलियो वायरस पर खासी हद तक काबू पा लिया है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, कफ़ायत अली शाह से जानते हैं। जी कफ़ायत। जी, आज वर्ल्ड पोलियो डे के मौके पर यहाँ के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो पोलियो के हवाले से खिदमत अंजाम देते हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब थी। तकरीब में जो है वो वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल साहब जो हैं वो शरीक हुए। हमारे साथ इस टाइम वज़ीर सेहत साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आप ये कह रहे थे कि वो पॉकेट्स में रह गया कुछ मौजूद। जी, मौजूदा हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आज़म और उनकी कैबिनेट आवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डालना चाहती। इस सिलसिले में हमारी मीटिंग्स बहुत सारी हुई हैं और लास्ट सैटरडे को भी जूम पर हमारी मीटिंग हुई। मैं जूम पर था कराची से, उस पर CEO भी मौजूद थे JSK के जो पैनाडोल बनाते हैं, तमाम स्टेक होल्डर PPMA वगैरह मौजूद थे और उस पर कमेटी आज नोटिफाई हो गई है, हो जाएगी, अभी मिल जाएगी आपको। तो वो इससे हटके कि कीमत आवाम पर ना बोझ डाला जाए, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत ने 2 बार बेवजह बहुत सारी कीमतें बढ़ा के जो है एक बोझ डाल दिया था। और ये समरी भी जो है कीमत बढ़ाने की पैनाडोल की, ये भी उन्हीं के ज़माने की बनी हुई है। सिर्फ हमारे पास जो है वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान और टांक और इस साइड पे जो ये अज़ला जुड़े हुए हैं एक दूसरे से और अफ़गान बॉर्डर पे हैं, तो यहीं पर हमारे सारे केसेस है ये। तो इंशाल्लाह ताला इस मुल्क से पूरे से धकेल कर इस कोने तक तो ले आए हैं और वहाँ भी काम बेहतर हो सकता था और इंशाल्लाह अब कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अज़म के साथ, कुव्वत के साथ और 54 शौदा के साथ इस मिशन को आगे लेकर बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाकर दम लेंगे। तो उनका ये कहना था कि पैनाडोल पर जो है वो बातचीत चल रही है और बेहतर जो है वो इसके हवाले से मज़ीद इक़दाम भी किए जाएंगे। जी। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ को केन्या में कत्ल कर दिया गया। नैरोबी पुलिस ने अरशद शरीफ को मतलूब मुलजिम की गलत शनाख्त पर निशाना बनाया। गोली लगने से वो मौके पर ही दम तोड़ गए। केन्या पुलिस ने पाकिस्तानी सहाफ़ी के इत्तफाक़ी कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के केन्या पुलिस के हाथों कत्ल पर सहाफ़ियों ने प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया है। उस्मान खान से तफसीलात जानते हैं। जी उस्मान खान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। सहाफ़ी अरशद शरीफ के केन्या के पुलिस के हाथों कत्ल का मामला है। अरशद शरीफ के कत्ल पर सहाफ़ियों ने प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया है। सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाजन वॉकआउट किया गया है प्रेस गैलरी का। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर पाकिस्तानी हुकूमत का दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो समेत दीगर हुकूमती शख्सियात ने ताज़ियती पैगाम जारी किए। सियासी क़यादत ने अरशद शरीफ के अहल खाना को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। ISPR का सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की नागहानी वफ़ात पर गहरे दुख का इजहार। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल पर सियासी क़यादत के ताज़ियती पैगामात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरशद शरीफ की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। ट्वीट में कहा, अरशद शरीफ की अलमनाक मौत से सदमा पहुंचा है। वज़ीर-ए-आज़म ने सौगवार ख़ानदान से ताज़ियत और सब्र और जमील की दुआ की है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की भी अरशद शरीफ के कत्ल की मज़म्मत। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, अरशद शरीफ के कत्ल की खबर सुनकर सख्त सदमा हुआ है। आसिफ अली ज़रदारी ने खानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी अरशद शरीफ के कत्ल पर इजहार अफसोस। कहा, अरशद शरीफ का कत्ल पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। मकतूल के वरसा सहाफ़ी बरादरी और उनके मद्दाहों से ताज़ियत करता हूँ। अरशद शरीफ के कत्ल पर वज़ारत ख़ारजा कीनिया के हुकाम से राबते में है। ISPR का भी सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की नागहानी वफ़ात पर गहरे दुख का इज़हार। बयान में कहा, दुख की इस घड़ी में अल्लाह ताला अरशद शरीफ के लवाहिकीन को सब्र और जमील अता फरमाए।
अल्लाह ताला अर्श शरीफ के दर्जात को बुलंद करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का अर्श शरीफ की वालिदा और पाकिस्तान में कीनिया के सफीर से टेलीफोन पर राबता। वज़ीर इत्तलात ने ताज़ियत और गम का इज़हार किया। वज़ीर इत्तलात ने अर्श शरीफ की वालिदा को अब तक होने वाली पेशरफ्त और मालूमात से आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनौल्ला का भी अर्श शरीफ के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इज़हार। वज़ीर दाखिला ने कहा, वाक़े से मुतालिक हक़ाइक़ जानने के लिए कीनिया की हुकूमत से राबते में है। नैरोबी में मौजूद पाकिस्तानी सिफारतखाना मुकम्मल मुआवनत कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा को अर्श शरीफ की फैमिली से राबते का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दोनों सेक्रेटरी फौरी तौर पर नुमाइंदे मुकर्रर करें जो फैमिली से राबता करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल रिपोर्ट भी तलब कर ली। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान इस वक्त इज़हार ख्याल कर रही हैं। कूद कूद के कभी पीटीवी पे हमला किया था इन्होंने, कभी सुप्रीम कोर्ट पे कर रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन को धोस धमकी, कभी पाकिस्तान को, कभी हुकूमत को, अपने पॉलिटिकल सियासी ओपोनेंट्स को आप बंद कर करके आप मुल्क के बाहर जाके कहते थे दंदना के सब भूल गए। और मैं याद दिलाऊंगी बार बार कि आपने मुल्क के बाहर जाके क्या कहा कि मैं सारे चोर डाकुओं को जेल में डालूंगा। इस तरह आपने अपनी मुल्क के लिए हेडलाइंस की जीनत आप बने थे। वहाँ आपने जाके अपनी तरफ से चोर डाकू का बयानिया मुल्क के बाहर ब्रॉडकास्ट किया था। FATF से हम निकले, उसकी क्रेडिट चेयरमैन बिलावल भुट्टो, फॉरेन मिनिस्टर की पूरी टीम और उनको जाती है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जाती है और सारे इदारों को, इन बशमूल आर्मी चीफ और जितने लोग जिन्होंने काम किया। बहुत लोगों ने इसमें रातें गुजारी हैं, बहुत मिनिस्ट्रीज़ ने जो 34 चीज़ें जो उसके एक्ट्स थे उनके आगे किया है काम। मतलब पाकिस्तान आगे निकला हुआ है इन 34 शिकों के स्पेशली। तो ये किस तरह क्रेडिट ले रहे हैं? इनके होते हुए तो हमने सारी इमदाद की थी, इनके होते हुए हमने करेक्शंस की थी, यहाँ उन्होंने इस हाउस में सबमिट तक नहीं होने दी थी, बुलडोजर चला दिया था। तो क्या बात कर रहे हैं? क्यों इनके टाइम में क्यों नहीं हुआ? ये नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को नॉन सीरियसली लिया हुआ था। अभी भी वो नॉन सीरियस है और नॉन सीरियस से तो बहुत आगे हैं। चोर डाकू तो अब प्रूव हो गया, साबित हो गया बगैर किसी अभाम के कि चोर डाकू जो तोशा खाना जैसे गिफ्ट्स को चोरियां करते हैं और मार्केट में बेचते हैं, ओपन मार्केट में। और आप पढ़ लें ECP ने क्या कहा है। कल आप में से राजा साहब, स्पीकर साहब, आप में से कोई, यूसुफ रजा गिलानी उठ के गए, कोई भी इस तरह करे, आप बताएं किस कठेरे में खड़े होंगे और सर झुका के खड़े होंगे? सर तस्लीम खाम जी, अदालत हमें कह रही है, ECP हमें कह रहा है, जो भी हमारे दिल में हम इज्जत से उनसे पेश आते हैं। आप बताइए, ये कहते हैं नहीं। और ECP में लिखा हुआ है वो आर्टिकल 1 से क्लॉज 173 ऑफ 17 तो 2017 के इलेक्शन एक्ट में क्या लिखा है? उसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। इसको करप्ट प्रैक्टिसेस ECP के लॉ में है। इट इज करप्ट प्रैक्टिसेस स्पीकर साहब जो ये कर रहे हैं टू मिस डिक्लेयर। और दानिस्ता तौर पे जब आप नहीं दे, चलो गलती किसी से भी हो गई, 20 साल पहले कुछ नहीं मिला उनको, वो तो खैर बनी गाला रेगुलराइज कर गए। आप करके देखें कोई चीज़ रेगुलराइज, मैं भी देखूं। थैंक यू सेनेटर साहब। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। आपको बताएं कि डेंगू के बढ़ते फैलाव को रोकने के लिए रैकेट ने इंडस अस्पताल के साथ मुश्तरका कोशिशें करने का ऐलान किया है। CEO रैकेट के शान हसन का कहना है कि मॉर्टिन डेंगू के बढ़ते केसेस को रोकने के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों, NGOs और वफाकी एजेंसियों के साथ शराकत दारी की है। इंडस अस्पताल के साथ इश्तराक भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। देखते हैं इसी बारे में सैयद नोमान गिल की रिपोर्ट। डेंगू के पंजे उखाड़ने के लिए रैकेट मैदान में। इंडस अस्पताल में मॉर्टिन और इंडस अस्पताल की इंतजामिया ने डेंगू के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें करने का ऐलान कर दिया। इस मौके पर CEO रैकेट काशान हसन ने कहा कि पहले दिन से हमारी डेंगू के खिलाफ जंग जारी है। बेसिकली मॉर्टिन जो है हमारा पाकिस्तान में सबसे बड़ा पेस्ट कंट्रोल का ब्रांड है जो कि आपको मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रख सकता है। ख़ास तौर पे आजकल डेंगू और मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं। इसका एक अज़म हमने किया हुआ है कि डेंगू अब नहीं। उसी सिलसिले में आज हम इंडस हॉस्पिटल के साथ मिलके एक पार्टनरशिप अनाउंस कर रहे हैं। हमने एक MOU साइन किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से लोगों को तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, लोगों को आगाह करें किस तरह वो अपने आप को इन बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। CEO
इंडस अस्पताल डॉक्टर अब्दुल बारी खान ने कहा कि डेंगू मौसमी बीमारी है, हमें उसका मुकाबला मिलकर करना होगा। प्रिवेंशन ही इसका काम है, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं, कोई दवाई इसके लिए नहीं निकली है, इसको प्रिवेंट ही करना है। और उसके लिए हमको एक मीडिया कैंपेन भी चलेगी इंशाल्लाह, और फिर ये जो सारे सप्लाईज देंगे। एक दफ़ा लोगों के अंदर आदत, लोगों का जो है ना, जब तक रवैये तब्दील नहीं होंगे हम इन चीज़ों से बच नहीं सकेंगे। तो रवैयों में तब्दीली लानी है। चूँकि पूरे मुल्क में इन प्रोडक्ट्स की अशद ज़रूरत है, और क्योंकि इंडस जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़ा मलेरिया का प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है और सेफ्टी नेट्स उसमें इस्तेमाल करता है, तो सेफ्टी नेट्स और इनके प्रोडक्ट्स मिलाते हुए आई थिंक हम बहुत सी जानों को बचा पाएंगे इंशाल्लाह। डेंगू कुव्वत मुदाफ़ियत कम होने की वजह से ज़्यादा खतरनाक होता है, जबकि इसका मुकाबला करने के लिए रैकेट पिछले 1 साल से मुख्तलिफ अस्पतालों में रेफल्स की फरामी के साथ मुकम्मल LED सेट अतिया कर रहा है। रैकेट का ये अज़म है कि मुल्क में डेंगू अब नहीं। अडयाला जेल से मुतल्लिक इंसानी हकूक़ कमीशन की खौफनाक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। अडयाला जेल में एड्स के 119 कैदियों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। जेल में गुंजाइश से 180% ज़्यादा कैदी रखे जाने का भी इंकशाफ हुआ है। जेल के 5851 कैदियों के लिए सिर्फ एक मर्द डॉक्टर दस्तयाब है। इंसानी हकूक़ कमीशन के 99 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई थी। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे एहतशाम कियानी से। एहतशाम कियानी, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इंसानी हकूक़ कमीशन ने 99 सफ़ात पर मुश्तमिल एक खौफनाक रिपोर्ट तैयार की है, जो कि हक़ाइक़ पर मबनी है, क्योंकि इंसानी हकूक़ कमीशन का वक्त जो है उसने अडयाला जेल के मुताबिक दौरे किए और उस दौरान इंक्वायरी का सिलसिला चलता रहा, जिसके बाद ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि अडयाला जेल में 119 HIV एड्स के पॉजिटिव कैदी मौजूद हैं। इसके अलावा गुंजाइश से 180% ज़्यादा कैदी हैं। 2174 लोगों की गुंजाइश वाली ये जेल है, जिसमें 6098 कैदी मौजूद हैं और 5851 कैदियों के लिए एक मर्द डॉक्टर मौजूद हैं। लेकिन ये भी रिपोर्ट में लिखा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा से 900 कैदी जेल में मौजूद हैं, लेकिन जो केपी की हरीपुर जेल है उसमें गुंजाइश 800 कैदियों की है, वहाँ 300 कैदी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मौजूद 900 कैदियों को वहाँ मुंतकिल नहीं किया। इंतहाई खौफनाक रिपोर्ट है, इसके बारे में आप बता रहे हैं शाम, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में कल सूरज ग्रहण होगा। साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण कल 2 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक रहेगा। लाहौर में सूरज ग्रहण 3:49 पर शुरू होगा, जो 4:54 पर अपने जोबन पर होगा और 5:20 पर ख़त्म हो जाएगा। माहिरीन का कहना है कि 61% सूरज ग्रहण लाहौर में देखा जाएगा। माहिरीन ने शहरियों को खबरदार किया है कि सूरज ग्रहण को न देखें। इन मनाजिर को देखने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। पाकिस्तान के एक और मेगा बजट फिल्म टिच बटन की प्रमोशंस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। कराची में वाक़े मॉल में फिल्म की स्टार कास्ट शहरियों में घुल मिल गई। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से, जो कि इस वक्त अदाकारा उर्वा हुसैन के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, लंदन नहीं जाऊंगा के बाद शायकीन फिल्म के लिए पेश खिदमत है टिच बटन। मेगा बजट फिल्म टिच बटन की बाकायदा तौर पर प्रमोशन का उसका आगाज़ हो चुका है और अदाकारा उर्वा हुसैन, इसके अलावा अदाकारा ईमान अली और मारूफ गुलकार फरहान सहित अवाम में घुल मिल गए। लकी वन मॉल में आज अवाम पूरी जो स्टार कास्ट है शहरी में घुल मिल गई और बहुत खूब सेल्फियाँ खिंचवाई। उर्वा हुसैन इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं और बहुत एक्साइटेड भी नज़र आ रही हैं और हमेशा की तरह बहुत हसीन भी हैं। उर्वा, क्या प्यार मिल रहा है कराची के आवाम से? मिल रही है फिर 11 नवंबर को आवाम के साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत प्यार मिल रहा है हमेशा की तरह। जब भी फिल्म्स मैं अपनी प्रमोट करने आती हूँ, ये वाली प्रोड्यूस की है, जिनमें मैं एक्ट भी कर रही होती हूँ, तो बहुत सारा प्यार इन सब लोगों से मिलता है और बड़ा ओवरवेलमिंग भी हो जाता है। हाँ जी। अच्छा ये बताएं, प्रोड्यूसर हैं फिल्म की, फरहान ने परेशान किया फिल्म के दौरान जो है एक्टिंग की मुनासबत से? मेरी पूरी टीम बहुत ही अच्छी थी, किसी ने परेशान नहीं किया और सबके साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ एज एन एक्टर भी, चाहे वो कैमरा टीम हो या जो एक्टर्स थे जो स्क्रीन पर आ रहे हैं, चाहे वो टीम हो, सबके साथ मैंने काम किया हुआ है, तो इसलिए और भी अच्छा रहा। दुनिया भर में जो लोग पाकिस्तानी सिनेमा को पसंद करते हैं, पाकिस्तानी ड्रामास को पसंद करते हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ुबैर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।